لیکن لوگ لاپرواہ ہیں اور نقصان ہوتا ہے بعد میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس زکوٰۃ کے پیسوں کو آپ غریبوں کا حق ہے، یہ مسجد میں نہیں دے سکتے، مسجد بنانے میں زکوٰۃ کے پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، مدرسوں میں غریب بچے ہوتے ہیں، غریب بچے ان بچوں کے کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں، یا گھر کے پاس آپ کے جو غریب ہیں ان لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے اندر آپ داخل ہو گئے تو صحیح معنی میں مسلمان ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اسلام کے اندر پوری طرح داخل ہو جاؤ، پوری طرح۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام میں پوری طرح داخل ہو، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ نہیں دی، اب اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے، آپ پکا مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کسی بھائی کو، مسلم بھائی کو، مسلم غیر مسلم کسی کو تکلیف بھی نہیں دے سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرے وہ بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ بھائی سے مراد کوئی بھائی، مسلم بھائی۔ اپنے گھر کے، یہاں تو گھر الگ الگ ہے، جو ٹاؤن میں جو گھر ہے وہ گھر ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک گھر دوسرے گھر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کا پانی دوسرے کی چھت پر ڈال نہیں سکتے۔ آپ اس کو پسند کریں کہ وہ اپنے پانی اور آپ کی چھت پر ڈال دے؟ اس کو آپ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح آپ اپنی چھت کا پانی دوسرے کی چھت پر نہیں ڈال سکتے۔ پانی کا جو نکلنے کے ناؤڈی سے جو پانی نکلتا ہے نا، گرتا ہے، وہ پانی دوسرے کے گھر کی طرف نہیں ڈال سکتے، اس کا نیو کمزور ہو جائے گا، اس کے گھر کی بنیاد کے نیچے پانی چلا جائے گا تو اس کا بنیاد کمزور ہو جائے گی نا، اس لیے آپ دوسرے کے گھر کی طرف نہیں ڈال سکتے پانی۔ شریعت اتنا خیال رکھتی ہے، اور حدیث میں ہے یعنی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ وفی روایت ولا یبلغ حقیقت التقوی حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ وہ آدمی تقوی کے حقیقت میں نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے لیے وہ پسند کرے جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ بھی پکا مومن نہیں ہوگا جو شخص دوسرے بھائی کو نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا رہے جیسا کہ اس کا سگا بھائی ہے۔ سگا یعنی سگا کیا ہے؟ آفون بھائی، آفون بھائی کی طرح بالکل کسی مسلمان کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ورنہ آپ یعنی خوف خدا آپ کے اندر نہیں ہے۔ خوف خدا اس وقت ہم مانیں گے جب آپ اپنے کسی بھائی کو، مسلم بھائی کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کھیت میں گئے، پانی تمہارے کھیت میں نہیں ہے، دوسرے کے کھیت میں اس نے کتنی محنت سے پانی پہنچایا، چپکے سے رات جا کے اس کا آئل کاٹ کے آپ پانی لے آئے۔ صبح یہ آدمی گیا، اپنے گدھے کا سارا پانی نکال لیا، اور پھر پانی نکال کے رات کے کسی وقت آ کے اس کو بند بھی کر دیا تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن یہ آ کے دیکھ رہا ہے میری زمین تو سوکھ گئی اور اس کے زمین میں پانی پانی ہے۔ اتنا بیوقوف ہے وہ نہ سمجھے، اپنے رات کام کر لیا۔
रात्रे अपने खाम खोर सोई और अब सूफी बन रहे। कितनी मेहनत से कितनी दूर से पानी लाया, रात आपने चुरा लिया। ये ठीक नहीं है, ये मूमिन नहीं कहा जाएगा ऐसे आदमी को। ऐसे आदमी को मूमिन नहीं कहा जाएगा। आपकी ज़मीन दूसरी तरफ और ये खेत लोगों की है, धान पक रहे हैं, आप चल रहे, धान के बीच में चल रहे, पैर रख रहे धान के ऊपर। कितना धान का नुकसान किया आपने। आइल चूंकि छोटी है, आइल के ऊपर पैर नहीं, खेत के बीच में आप चल रहे, कितना नुकसान किया आपने। क्या आप अपने धान का नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों का कर रहे हैं। कौन सा ईमान आपका? ये तो ईमान नहीं है, ईमान कामिल नहीं है, ईमान नाकिस है। ईमान कामिल पैदा करने के लिए इन सब बातों को जानना पड़ेगा। आप रास्ते में चल के जा रहे हैं, रास्ते में देखा आपने काटा है, लेमूर गासर गोसा बा और कोई दरख्त है जिसका काटा वाला गोसा वाला कोई है रास्ते में, उसको आपने हटाया नहीं, आप भी मूमिन नहीं है, कामिल मूमिन नहीं है। आपने सोचा नहीं मेरे पीछे मेरा भाई आ रहा है, मेरा मुसलमान भाई आ रहा है, उसको चोट लगेगी। अगर हटा दे, आपको चोट लग गई, तकलीफ आपको हुई, लेकिन आप हटा नहीं रहे। यहाँ तक एक पत्थर या ईंट का टुकड़ा अगर इसकी नोक निकली हुई हो, अब पैर में चोट लगती है, उसको भी ना हटाया, आप कामिल मूमिन नहीं है। क्यों? पीछे से आने वाला वो आएगा, उसको चोट लगेगी। तो कामिल मूमिन होने के लिए इतना एहतियात ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मूमिन नाम है शांति और अमन का। मुसलमान मूमिन अमन और शांति का यानी एक नमूना है। जो आदमी मुसलमान हो गया, जो मूमिन हो गया, इसके अंदर शांति ही शांति है। वो अपने आप के अंदर भी शांति रखेगा, दूसरों को भी आराम पहुंचाएगा, दूसरों को भी आराम पहुंचाएगा। एक वाकया मैंने दूसरी जगह सुनाया। एक लड़की ये फंस गई थी कहीं और उसने कहा, उसका घर एक मुसलमान आदमी के पास है, तो वो भाई के साथ जा रहा था कहीं भीड़ भाड़ में, भाई खो गया। अब वो अकेली लड़की किसके साथ जाएगी? एक हिंदू था, एक मुसलमान था। उसने कहा मैं मुसलमान भाई के साथ जाऊंगी। कि मुसलमान के अंदर अमानत और दयानतदारी है। वाकई वो मुसलमान आदमी के साथ वो लड़की गई और उसने उसके घर तक पहुंचा दिया। देखिए इस्लाम के अंदर कितना अमन, इस्लाम के अंदर कितनी शांति है। ये शांति किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, अल्लाह ने जो रास्ता बताया कुरान शरीफ में और रसूलुल्लाह ने जो रास्ता बताया हदीस शरीफ में, उसी रास्ते को अपना कर उसी रास्ते पर चलना, ये सही ईमान और सही इस्लाम का रास्ता है। इसलिए मैंने आयत पढ़ी थी, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ, अल्लाह सामने दड़ाइते होई बे, आज नहीं तो कल जाइते होई बे। अगर ये डर है दिल में तो उसकी इबादत आप करेंगे, गुनाहों से आप बचेंगे, नहीं तो बहुत ख़तरा आपके लिए बहुत ख़तरा। यानी कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ जिसके अंदर होगा, वो कभी गुनाह नहीं करेगा, वह इबादत ही इबादत करेगा। और इबादत के कितनी ज़्यादा मुश्किल नहीं इबादत,
5 वक्त की नमाज तो सब लोग पढ़ते हैं। सर्दी है तो गर्म पानी से वज़ू कर लो। आजकल गर्म पानी की कितनी सहूलत हो गई। पहले गैस नहीं था, अल्लाह ने गैस दे दिया। लेकिन पहले ज़माने में जिन लोगों ने ठंडे पानी से वज़ू करके नमाज पढ़ी, बताइए क्या उन लोगों की इबादत, हमारी इबादत तो उनके पास नहीं जा सकती। इन्होंने जो तकलीफ़ें उठाई, इसलिए हमें अल्लाह ने इतनी सहूलत दी। गर्म पानी है, गर्म पानी से वज़ू करिए और सीधे मस्जिद जाकर फजर की 2 रकात नमाज पढ़िए। सुन्नत घर में पढ़ के जाइए, सुन्नत घर में पढ़ के और फ़र्ज़ जाकर मस्जिद में पढ़िए। और नमाज पढ़ के फिर आराम से अपने वहाँ बैठ के तस्बीह उसबीह पढ़ के 15 मिनट के बाद इशराक की 2 रकात नमाज पढ़ के घर आ जाइए। इशराक की 2 रकात का सवाब जानते हैं क्या? एक नफल उम्रा के बराबर है। एक नफल उम्रा के बराबर है। कहिए सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज आप अगर देखिए, बदन में एक 360 जोड़ है, बदन के अंदर 360 जोड़ है। देखो ये उंगली है ना, 1 जोड़, 2, यहाँ एक 3, ऐसे पूरे बॉडी के अंदर 360 जोड़ है। अल्लाह के रसूल फरमाते इनका सदका वाजिब है, इनका सदका अदा करो। 1 रुपया करके अगर आप देंगे तो कितना है? 360 रुपया। रोज़ाना 360 रुपये आप दे देंगे सदका, जेब खाली हो जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लो, 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाएगा। फजर की नमाज के सूरज निकलने के बाद 15 मिनट बाद 2 रकात इशराक और नमाज पढ़ी ले, नफल उम्रार सवाब पावा जाए और 360 जोड़ों कफ़ारा भी अदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, क्या इबादत आज से पहले, इस उम्मत से पहले, पहली उम्मत की बड़ी लंबी उम्र होती थी। किसी के 500 साल, किसी के 600 साल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोगों की तो उम्र 1200 साल तक थी। इतना लंबा जीते थे लोग। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत 60-63 साल के बाद जो उम्र मिलती है वो तो समझो फ्री में मिल गई। नहीं तो जिस नबी की जो उम्र होती है उसी उम्र में लोग मर जाते हैं। तो 63 বছর পরে যে বয়স পাইলেন আপনি, এই বয়স তো ফ্রি পাইলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এহসান है।